students, myself Komal. So in the previous video we have talked about exercise 3.1 and we are at example number 6. So let's start with example number 6 in which we are having find the values of x, y and z from the following equations. So जब भी हमको ऐसा इक्वेशन या कोई भी वैल्यू फाइंड करनी होती है देन वी आर हैविंग मैट्रिसेस ऑफ सिंगल सेम ऑर्डर. तो यहाँ पे दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, सेम है. दैट इज दिस इज 2x2 मैट्रिक्स एंड दिस ऑल्सो 2x2 मैट्रिक्स. ठीक है. सो हम क्या कर सकते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. सो 4 इज इक्वल्स टू y, z is equals to 3, x is equals to 1 and phi is equals to 5. So the values, therefore the values of x is equals to 1, y is equals to 4 and z is equals to 3. Okay. So when we have to prove any or we have to find any values then the matrices of the same order is must. अगर वो same order के नहीं होते हैं then we can't compare the terms with each other. Okay. Now move on to next, which is example number 3 in which we are having the equation. So यहाँ पे भी देखो we are having 3 rows and 1 column. 3 rows and 1 column. So again we can compare the corresponding elements of matrices. So x plus y plus z is equals to 9. X plus z is equals to 5 and y plus z is equals to 7. Okay. So यहाँ पे हमको ऐसी 3 वैल्यूज मिल गई है. अभी वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई एंड जेड. ओके. सो हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल को क्या कर देंगे, हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे. ठीक है. सो अगर हम उसको सब्जेक्ट बना देते हैं देन वी आर हैविंग एन इक्वेशन अकॉर्डिंग टू देम. सो जेड अगर मैं सेकेंड वाला इक्वेशन लेती हूँ जिसमें अगर मैं जेड इज इक्वल्स टू, अगर मैं z इज इक्वल्स टू फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन तो z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स. ठीक है. और एल्स वी कैन हैव अगर y एंड z, y और z की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7. सो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में वो रख दूँ दैट इज फ्रॉम, इसको नंबर दे देते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. सो फ्रॉम द इक्वेशन 3 and 1. So what we have, y plus z is equals to 7. So y plus z की जगह पे मैं पूरा यहाँ पे 7 लिख सकती हूँ. So x plus 7 is equals to 9. So therefore x क्या हो जाएगा, x is equals to हो जाएगा 2. That is 9 minus 7 is equals to क्या हो जाएगा 2. Okay. Now from equation 2 that is x plus z is equals to 5. So therefore 2 plus z is equals to 5 which gives z is equals to 3. ठीक है. Now if we are putting z is equals to 3 in equation number 3, okay. So here we are having from equation 3, what are the equation, y plus z is equals to 7. So therefore y plus 3 is equals to 7.
विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 7 माइनस 3. सो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? y विल बी 4. ओके, सो y का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? y का वैल्यू आ जाएगा 4. ओके, सो वी कैन राइट दैट the values of x is equals to 2, y is equals to 4 and z is equals to 3. Okay, now move on to next, which is example number 7, in which we are having find the values of a, b, c and d from the equation. So again we have to compare. यहाँ पे भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 matrices है both the side, so we can compare. So for the first, that is a minus b is equals to minus 1, 2a plus c is equals to 5, 2a minus b is equals to 0 and 3c plus d is equals to 13. ओके, सो यहाँ पे से देखो 2a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? b हो जाएगा. 2a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? b हो जाएगा. Therefore a इज इक्वल्स टू व्हाट? b by 2. Yes. Now from this equation, that is a minus b is equals to minus 1, उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं. इफ वी आर पुटिंग a की जगह पे हम b माइनस 2 लिख देते हैं. b माइनस 2 माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस 1. सो 2 इज द LCM, सो b माइनस 2b इज इक्वल्स टू माइनस 2. सो b माइनस 2b कितना हो जाएगा? माइनस b. माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस 2. देयरफॉर b इज इक्वल्स टू व्हाट? 2. ओके, तो ऐसे a का वैल्यू क्या मिल जाएगा? a इज इक्वल्स टू व्हाट? b by 2, that is 2 by 2. Therefore a is equals to what? a is equals to हो जाएगा हमारे पास 1. Okay, now move on to next, that is 2a plus c is equals to 5. So a का वैल्यू है हमारे पास 1. So 2 into 1 plus c is equals to 5. Therefore c is equals to what? 3. Okay, b का वैल्यू यहाँ पे है 2, a is equals to 1. ठीक है, and now c is equals to 3. So therefore 3 into 3 plus d is equals to 13. Therefore d is equals to what? 13 minus 9. So therefore d का वैल्यू कितना हो जाएगा? d is equals to 4. Okay, so the values of a is equals to 1, b is equals to 2, c is equals to 3 and d is equals to 4. Okay, now move on to, just a second. Okay, so here we are having example number 8, in which if Aij m cross n is a square matrix if A m less than n and C m equals to n. Okay, so हमको ऐसे एक मैट्रिक्स फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें A is equals to Aij, m cross n is a square matrix where A is equals to m less than n and C is equals to m equals to n. मतलब रो और जो कॉलम है उसका कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए? where we are having a combination of m less than n. तो okay, so let's just find, just a second. Okay, we have to choose from A is equals to m less than n, B is equals to क्या दिया है? B is given as m
greater than n, C is equals to M equals to N, and D is equals to none of the above. ओके, सो अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, सो रोज एंड कॉलम्स विल बी इक्वल. अगर लेस देन होता है मतलब रो एन इज लेस देन एन, मतलब रोज कम है एंड कॉलम ज़्यादा है, सो इट इज़ अ रेक्टेंगल मैट्रिक्स. ये क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो जाएगा. अगर M1 है एंड n इक्वल्स टू 2, मतलब रोज 1 है, रो इज़ 1 एंड कॉलम इज़ 2, सो ये कौन सा एक रेक्टेंगल स्क्वायर हो जाएगा. अगर m ग्रेटर देन n है, दिस अगेन अ रेक्टेंगल मैट्रिक्स, मतलब कौन से ऑर्डर वाला, 3x2 मैट्रिक्स, मतलब ऐसा 3x2 मैट्रिक्स, 4x3 मैट्रिक्स. बट हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन है उसमें क्या बताया गया है कि बोथ द रोज एंड कॉलम्स आर विल बी सेम. क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. सो इट विल बी 3x3, 4x4, जस्ट लाइक n क्रॉस n. ठीक है, सो द ऑप्शन सी, दैट इज m इज इक्वल्स टू n, विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, अगर हमें A इज इक्वल्स टू Aij m क्रॉस n को स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है, देन m इज इक्वल्स टू n इज द कंपल्सरी. ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट, विच इज एग्जाम्पल नंबर 9, in which we are having again which of the given values of x and y make the following pairs of matrices equal. ओके, सो यहाँ पे x और y की इंडिविजुअल वैल्यूज़ दी गई है, तो हमको हर एक इक्वेशन में रख के, मतलब x का वैल्यू और y का वैल्यू रख के कंपेयर करना है कि विच x एंड y वैल्यूज़ आर सेटिस्फाइंग द इक्वालिटी. ओके, सो फर्स्ट अगर है 3x प्लस 7, 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0. ओके, 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0. सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -7/3. ओके, नाउ द सेकेंड, दैट इज 5 इज इक्वल्स टू y -2, therefore 5 plus 2 is equals to y, which gives y is equals to 7. ठीक है, now the next will be y plus 1 is equals to 8, which gives y is equals to 8 minus 1 is equals to 7, and the last, that is 2 minus 3x is equals to 4. Therefore minus 3x is equals to 4 minus 2, therefore x is equals to -2/3. बट यहाँ पे देखो y का वैल्यू तो दोनों जगह सेम आ रहा है, y इज इक्वल्स टू 7, y इज इक्वल्स टू 7, बट फॉर द x one value is -7/3 and the second value will be -2/3. ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज B, नॉट पॉसिबल. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज B, that is not possible. Okay, now move on to next, which is example number 10, in which we are having, we have to find the number of all possible matrices of order 3x3 which with each entry 0 or 1 is. ओके, सो यहाँ पे हमको द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम मैट्रिसेस फाइंड करना है ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1. ओके, सो यहाँ पे भी ऑप्शन दिए हैं, a इज इक्वल्स टू 27, b इज इक्वल्स टू वॉट, b है हमारे पास 18, c है 81 एंड d इज इक्वल्स टू वॉट 512. ओके, सो अगर 3x3 है तो 9 एलिमेंट होने चाहिए. 3x3 है, देन वी आर हैविंग द 9 एलिमेंट्स एंड ईच ऑफ दिस एलिमेंट्स कैन बी आइदर 0 और 1.
So now each of the 9 elements can be filled in 2 possible ways. Therefore, by the multiplication principle, the required number of possible matrices is 2:9. ठीक है, मतलब हमने जो एक प्रिंसिपल सीखा था, दैट इज़ अगर n एलिमेंट्स सो इट कुड बी रिप्रेजेंटेड एज 2:n. ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे कितने एलिमेंट्स चाहिए? 3 क्रॉस 3 मीन्स 9 एलिमेंट्स. 9 एलिमेंट्स. सो द आंसर कुल बी 2:9 ओनली. और 2:9 कहाँ पे आता है? 5 and 2. ओके, सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर is D. Okay, so we will just stop here. In the next video we are going to continue some of the examples, and as we learned about operations of addition, multiplication of a scalar to matrix, फिर उसके रूल्स, ये सारी चीज़ें हम पहले वाले वीडियोज़ में उसका डिस्कस कर चुके हैं. ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व सम ऑफ द एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स. Till then, thank you.